دیکھیں میرا خیال ہے کوئی 10 بپتسمے تیار سے کہ وجہ نہ ہاؤس پر ہے صبح 4 بجے اٹھے ہوئے ہیں کہ ہاؤس پر رہ جائے کیونکہ لائٹ بھی جاتی ہے کافی پرابلم ہے کہ 4-5 گھنٹے لگاتار موٹر بھی چلتی ہے اور بپتسمے نے لوگ میں کٹ نظر آؤں گا کتنا بپتسمہ جانا شاباش جی ایک کی بپتسمہ بازو نظر آیا اور 2 پانیاں نے کنے لینے بپتسمے صرف 2 تقریباً 12 لوگ اور وزٹ کی گئی ہے اور میں نالا دسیا سی کہ شیطان جڑا ہے وہ روک دیتا ہے شیطان کی کر دیتا ہے روک دیتا ہے وہ دی کوشش ہوتی کہ میں اپنی سٹیپ لگاواں تاکہ اس شخص کے اوپر یسوع دی مہر نہ رہے بلکہ میری مہر رہے ہاللویا اس شخص میرا ہو جائے یہ بیٹی میری رہے کیونکہ میں بہت سارے قابل ہیں اپنے تو جنہوں اسی اس سٹیپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کی ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے کیونکہ آج کا کلام بیٹی راشد نے سنانا سی لیکن اگلے اتوار بیٹا راشد ضرور کلام سنائے گا اور آپ کی بوا میٹنگ لیڈ کرے گی تو کوشش کریں کہ تیاری کر کے ہوں میں صرف بپتسمہ سے آج کلام سنان لگا کیونکہ بپتسمہ میں کدو بھی دسنا ہے میں بڑی وضاحت دنال دسنا ہے کہ بپتسمہ ہے کہ دنال ہاللویا کیونکہ بپتسمے دی پوری ریٹ نہیں دسی جاندی پورا طریقہ طور نہیں دسیا جاتا صرف ایک کوئی حوالہ دسیا جاتا ہے ان دوبارہ کے نہیں لے کے جاندے کسی کہ کس طرح جانا یہ کلام مقدس میں سے دیکھیں گے متی رسول کی انجیل اس کا 28 باب اور اس کی 16 میں خود ہی پڑھوں گا آپ نکال لیں 28 باب اس کی 16 ہے نکالیے جس کے پاس لیبل ہے نکال لیں وقت ہے آپ کے پاس جلدی سے رکھ لیں 28 باب اس کی 16 ہے نکالیے سب نے واضح بھی بچوں لکھا ہے کہ اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا مگر بعض نے شک کیا یسوع مسیح نے کون نہیں دسی دوستوں بچیوں کتنے شاگرد رہتے سی 11 12واں یہودا سی تو انہیں یسوع نو بیچ کے اندر بعد اپنے آپ نو اپنی بخشش نال انہیں اپنے سینے چ ماری آپ مار گیا کیونکہ پچھتایا کہ میں یسوع مسیح نو پکڑوایا کی کیتا ہے پچھتایا کہ میں اپنے یسوع نو تے اپنے استاد نو کی کیتا ہے پکڑوایا ان 3 سال تک یسوع مسیح انہاں دے نال رہیا ہے 3 سال دو بعد یسوع مسیح کنے دن مرے اپنا دفن ہوئے نے تو تیسرے مردہ چوں جی اٹھیا ایک پیشن کوئی پہلے اپنے شاگرداں نے کہہ دیتی سی کہ میں مراں گا اور دفن بھی ہوا گا جس طرح طریقہ طور انسان دا ہے تو خود آدم بن کے یسوع مسیح آ گیا ہاللویا طریقہ طور سی کہ انہیں دسیا کہ میں دفن بھی ہونا جس طرح سی قبر چ دفن کرنے لیکن یہ قبر نہیں سی بلکہ وہ پتھر دی قبر سی ہاللویا تراشی گئی ہوئی سی اور یسوع مسیح اتنے رکھا گیا تے تیسرے مردے چوں جی اٹھیا جی اٹھن تو بعد یسوع مسیح اپنے 11 شاگرداں دے کول اسی گلیل دے پہاڑ دے آیا
जिथे पहले दिन भी आया तो फिर मरण तो बाद भी, जिंदा होने तो बाद भी यीशु मसीह आया। तो लिखा कि बाज ने शक किया। बाज ने क्या किया? शक किया। हुण असीं इन्ने सालां तो एक दूसरे नूं जानने आ, बाज नूं जानने आ, पहचानने आ, ते अगर असीं 3 दिन ना मिलीए, 3 दिन तो बाद साडी शक्ल होर होवे ते बाज ओही होवे, ते मैं समझ असीं परेशान होवांगे। होवांगे कि नहीं होवांगे? परेशान होवांगे। समझ आई गल कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह पहले काबिल इंसान सी ते जिंदा होने के बाद काबिल खुदा बन गया। हालेलुया। पहले किसी काबिल इंसान ते फिर की बन गया? काबिल खुदा बन गया। ते जो काबिल खुदा बनया तो उस वक्त शागिर्दां दे अंदर शक पैदा होया कि आवाज यीशु मसीह दी है लेकिन चेहरा यीशु मसीह दा नहीं, क्योंकि उस वक्त बदल दे अंदर सी, फिर रूहानी बदल दे अंदर सी। हालेलुया। ते जो असीं भी रूहानी बदल दे अंदर उठाए जावांगे कब्र चों ते साडे चेहरे एक दूसरे को पहचानणगे नहीं, लेकिन ओहे पहचानणगे जो रूहानी लोग होंगे। हालेलुया। इस मसीह कलाम मुकद्दस के मुताबिक लिखा है कि आवाज ने शक किया, उन्होंने ये देखकर उसे सजदा किया। देखकर क्या किया? सजदा। मगर बाज ने शक किया। मतलब कुछ चंद लोग सिर्फ, कई लोग कहते सिर्फ तोमा ने शक किया, नहीं, अगर 11 सी तो 6 के अंदर ये शक पैदा होएगा कि इन्होंने ज़हन बंद सी, कि इन्होंने ज़हन बंद सी। अज भी यो गल है कि जिन्होंने इस कलाम को पढ़ते जरूर ने, लेकिन उन्होंने अंदर की शक, की उन्होंने अंदर शक। ते जो शक की बुनियाद नाल बपतिस्मा देंदे ने या कलाम सुनाते ने, वो प्रॉपर नहीं सुनाते, सिर्फ इस ऐत तक रहते हैं जी, जिन्हें शक च लोग ने। यीशु ने 5 साल आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। समझाने की खातर आसमान दे मालिक वही सी, जमीन दे मालिक वही सी। कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी है। इख्तियार वाला वही सी, लेकिन इख्तियार वाले समझना जरूरी है। बस तुम जाकर सब कौमों को क्या बनाओ? शागिर्द। किन्होंने आख्या? बोलिया कोई सारे नो, किन्होंने आख्या? यीशु मसीह ने आवाज दिया को, किन्होंने आख्या? शागिर्दां नु। हुण बपतिस्मा किने देना है? शागिर्दां ने पहले देना है, क्योंकि हुक्म किन्होंने होया है? शागिर्दां नु। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। के नाम से, के नाम से, कि एंदा कोई ना है, एंदा कोई नाम है। तेरे घर बेटा होगा और तू उसका नाम क्या रखना? यीशु। हालेलुया। सारू की मिल गया नाम, की मिल गया नाम। उसका नाम क्या है? यीशु। ये तो मतलब कि जो नाम मिल गया है तो फिर उस नाम को भूल सकता है? असी फिर भी भूले फिरने। ये तो मतलब कि शक दे विच, किथे आ? शक दी बुनियाद दे विच कि के नाम से, कि उनका नाम है, के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको क्या दिया है। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, ये वादा कितना कर रहा है यीशु मसीह अपने शागिर्दां। समझो इस गल को, कितना वास्ते गल कर रहा है? अपने शागिर्दां दे नाल कि मैं आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ते जो यीशु मसीह ये गल कह रहा है अपने लोगों को, अपने शागिर्दां को, ते गल पहले शागिर्दां दी उन्हें नाल पादरियां को ना आया कि फलाना बिशप हो नाल सी, फलाना पादरी नाल सी, फलाना बिशप ऐसी, फलाना पोप सी। नहीं, पतरस रसूल नो अगर औहदा दिता गया तो सीनियर दा औहदा दिता गया। आज रोम कैथोलिक के जिहड़े पोप ने कहते हैं पतरस एक ही है। पतरस
लेकिन याद रखो कि मुकद्दस पतरस रसूल है मशेरा सी, गरीब नहीं सी, मीर सी। मच्छियां फड़न वाले ते बेचण वाले गरीब नहीं होंदे, बल्कि की होंदे ने, मीर होंदे ने, लेकिन अनपढ़ सी। लेकिन यीशु मसीह दा चुनिया होया शागिर्द सी। हालेलुया। ते चुनिया होया शागिर्द नूं उहने की कहा कि तू मेरी गद्दी नशीं ते बैठेगा, तू मेरी गद्दी नशीं ते बैठेगा। ਇਹਦਾ मतलब है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਪ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। रूहानी तौर बाप सी। इस वास्ते याद रखो कि शागिर्द जिहड़ा सीनियर है वो पतरस है, वो भी विच ही बैठा हुआ है। लेकिन की आख्या कि तुम जाकर सब कौमों को क्या बनाओ, शागिर्द, और उनको बाप और बेटे और रूह उसके नाम से। बपतिस्मा नाम है, वो बगैर नाम तो नहीं, नाम मिल गया सानों कि उसका नाम क्या होगा, यीशु। हुण यूहन्ना दी इंजील 21 बाब दी आखिर जरा देखिए कि उत्थे हुक्म होया है ते क्या बपतिस्मा शागिर्दां पहले देना सी या पापियां पहले देना सी। जरा ये देखिए, क्योंकि मैं इस गल की खिदमत करते रहना है। बेशक कोई बाहर जाके होर भी खिदमत करे, मैनू इस गल का भी कोई डर नहीं। मैं अपना ईमान जिहड़े ने अपने नाल लेके जाने ने। हालेलुया। लेकिन असल बपतिस्मा जिहड़ा मैं समझादा रहना बच्चों नूं, बेटियां ने, बुजुर्ग मावां नूं भी, एल्डरा डीकना नूं कि अपने खानदान के अंदर जे कोई बपतिस्मा लैके आउंदे हो तो उन्हें पहले समझाओ कि यीशु नाल बपतिस्मा है। हालेलुया। 21 बाब दी 3 है। देखिए कि यीशु मसीह ने शागिर्दां नूं आख्या तुसीं बपतिस्मा देना है, ते की करना है। और शमौन पतरस ने उनसे कहा, निकालिए यूहन्ना 21 बाब उसकी 3 है। शमौन पतरस ने उनसे कहा कि मैं मछली के शिकार को जाता हूं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। उस रात यीशु मसीह ने क्या सी कि तुसी की करनी जाके मनादी की करनी है, ये फिर अपने शिकार वाले पासे। और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। शागिर्दों ने ये ना पहचाना कि ये क्या है। समझ आ रही गल दी? पिछे भी शक ते इत्थे भी शागिर्दां ने नहीं पहचानिया। और देखिए कि जेडे शागिर्द ना रह के खिदमत कर रहे हैं वो अजे तक यीशु मसीह को पहचान च नहीं लैके आ रहे, अजे तक मनादी नहीं करन दे। ते यीशु मसीह जो किनारे ते आया मछलियां फड़न दे सन, आहर कोई समुंदर कोई तलाब ते नहर होएगी जिथे वो मछलियां फड़ते होंगे। लेकिन याद रखो कि पूरी रात मछलियां जाल च नहीं आईया, पूरी रात मछलियां जाल च। जो सुबह होते ही लिखा है कि सुबह थक गए, भूख भी उन्होंने बड़ी लगी हुई, तो यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। पर यीशु ने उनसे कहा, कलाम की कहना है कि यीशु उन्होंने कोल सी। कौन सी? यीशु मसीह उन्होंने कोल सी। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जा डालोगे तो पकड़ोगे। आगे उन्होंने हुक्म मनिया, बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। कितनी मछलियां आ गई? ढेर सारी हैं। 195 मेरे ख्याल मछलियां देखी हुई हैं, 153। इस वास्ते याद रखो कि एडी बड़ी मछलियां आ गई, रात एक भी ना आई, एक डोला भी ना आया, कोई किसी किस्म की छोटी जी मछली भी ना आई। तो जो यीशु मसीह ने हुक्म दिता तो उन्हें की दसिया सी कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार
یہ مطلب ہے کہ یسوع مسیح وہی ہے جڑا پانی دی سطح کی کردا سی، چمش کردا سی. وہ یسوع مسیح دیکھو کہ جو شاگرداں دے نال کشتی سوار ہے تو وہ یسوع مسیح پانی دے چلیا کہ نہیں چلیا؟ پترس نے کہا میں نہیں چلنا چاہنا ہے. پترس نے کیا میں نہیں چلنا چاہنا ہے. تو یسوع مسیح اور نہیں سی، یسوع مسیح وہی سی. شاگردوں نہ پہچانا کہ یسوع نے ان سے کہا بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں. اس نے ان سے کہا کہ کشتی کی دائیں طرف جا ڈالو گے تو پکڑو گے. پاس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے. مطلب کہ اتنی مچھلی آ گئی کہ انہوں نے پتہ سی کہ جتنی مچھلی آ گئی جال بھی پھٹ سکتا ہے. اس لیے کہ اس شاگرد نے جس سے یسوع محبت رکھتا تھا پترس سے کہا یہ تو خداوند ہے. یہ مطلب کہ پہلی گل کدھر کی گئی ہے؟ پترس کو آخیا کہ یہ تو خداوند ہے. شمعون پترس سے یہ سن کر خداوند ہے کرتا کمر سے باندھا. کیا کرتا کمر سے باندھا کیونکہ ننگا تھا. کیونکہ ننگا ہی مچھیاں پڑھنے آیا سی. جدو پتہ لگا بھی یسوع مسیح سارا استاد آ گیا فٹافٹ شرمایا اپنا کرتا اور کمر نہ بنیا تاکہ جڑا ننگا پن سی ختم کرے اور جھیل میں کود پڑا. اور باقی شاگرد چھوٹی کشتی پر سوار مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے آئے کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے مگر تخمیناً 200 ہاتھ کا فاصلہ تھا. جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کولوں کو آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی. یسوع نے ان سے کہا کہ جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ. شمعون پترس نے چاٹ کر 153 بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا جال کنارے پر کھینچا مگر باوجود مچھلیوں کی کثرت سے جال نہ پھٹا. باوجود مچھلیوں کی کثرت سے جال یہ مطلب کہ انہوں نے دماغ چ گل ہے سی کہ جنیاں مچھلیاں آ گیا نے جال پھٹ سکتا ہے جال. لیکن یسوع مسیح نے جال بھی آرڈر کر دیتا کہ تو پھٹنا نہیں. یہ مطلب یسوع وہی ہے جڑا اسرائیل قوم نو مصر چ لے کے آیا سی. نہ کسی نے جُتی ٹوٹن دیتی تے نہ کسی نے کپڑا پھٹن. جے 5 سال دا تے انہاں 5 سال سول ود گیا ہے. 10 سال دا 10 سال تک سول ود گیا ہے. جُتی ٹوٹن نہیں دیتی کپڑا کسی نے پھٹن. ہاللویا. اس واسطے کہ یسوع مسیح وہی ہے. یسوع نے ان سے کہا کہ آؤ کھانا کھا لو. کنہاں نو کہہ رہے ہیں؟ بچوں ذرا بولیا کرو. اور شاگردوں میں سے کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھے تو کون ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خدا ولی ہے. کہ خدا نے ذہن کھول دیندا سی تے کہ یسوع نے ذہن کی کر دیندا سی بند کر دیندا سی. بڑی غور سے سننا ہے. یسوع آیا اور روٹی لے کر ان کو دی, اسی طرح مچھلی بھی دی. یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا. یہ مطلب کہ یسوع مسیح اج زندہ نے تے اج یسوع مسیح اپنے شاگرداں نال چلن رہا ہے. انہوں نے پریکٹیکل انہوں نے اپنا دکھا رہے ہیں کہ میں کس رنگ چ آیا, کس روپ چ آیا تے میں ہن کس روپ چ جانا ہے. ہاللویا. کتنی زبردست پریکٹیکل گل ہے. اگر کوئی اپنے استاد نو سمجھ لے تو میں سمجھنا اودے بغیر کوئی گل نہیں ہے. ہاللویا. تے یسوع مسیح نے انہیں پہچانیا تے کدوں پہچانیا کہ جدوں یسوع مسیح نے انہیں ذہن کھولے. لوکا کی انجیل ذرا جلدی کیونکہ میں شارٹ کٹ دسنا نہ کلام لیکن ترتیب بھی دسنا ہے نال شارٹ کٹ کلام بھی دسنا. لوکا کی انجیل اس کا 24 باب اس کی 32 آیت پڑھیں گے. انہوں نے آپس میں کہا جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کر رہا تھا. اچھا میرا دل ہے کہ بھائی شفا کر ذرا اونچی آواز نہ پڑھو. یہ والا ذرا. انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نشتوں کا بید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل
जोश से ना मर गए थे, बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। मतलब जो यीशु मसीह जिंदा आया ते पीछे अगर ਅਸੀਂ 24 ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯीशु ਮਸੀਹ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। तो ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀ ਉੱਥੇ ਮਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, जोश ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਬੱਚਿਓ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਦਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, लेकिन साढ़े पादरी उस दिन एक वाला पढ़ते हैं कि अही यीशु के शागिर्द ते बस अही जो कुछ करने सारा कुछ साढ़ा इख्तियार साढ़े को। लेकिन यीशु मसीह अपने शागिर्दां नाल रहन दिया, किसी बिशप नाल पादरी ने कोई गल नहीं हुई। ये सी अपने आप ही गल्लां की रात मेरे साथ रोया हुई, रात मेरे साथ ख्वाब में यीशु नजर आया। ये तो झूठी रोया है ना, जो सच्ची है, जो कलाम की बात है वो सच्ची कह सकते हैं, इंसान की बात झूठी है। इंसान की बात क्या है? झूठी। इस वस्ती कलाम च लिखा है और यारा उनके साथियों को इकट्ठा पाया, वो ये कह ही रहे थे खुदावन बेशक जी उठा और शमौन को दिखाई दिया है। उन्होंने राह का हाल बयान किया और ये भी उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। रोटी भी उसने तोड़ता जिस तरह उन्हें सबने तोड़ता सी, अपनी निशानदियां दिखा रहा सी कि मैं है कौन। हालेलुया। रूप नहीं सी लेकिन हाथ जो रोटी तोड़ता सी उन्होंने गलबात करता सी। मैं किसी घर जावां तो पता लगता भाई साहब आ गए तो आवाज को पछाण लेंदे की कर देंदे ने, आवाज को पछाण दे। अगर चेहरा होर होवे ते आवाज होर होवे ते तुसी शक च पै जाओगे कि आवाज दा पादरी साहब दी, लेकिन चेहरा समझ नहीं आ रहा कि पहले तो काला जहा सी हुण बड़ा गोरा चिट्टा हो गया, की वजह? लेकिन खुदा दी इस सारे भेद ने यीशु मसीह ने की ने भेद ने, और वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो, तुम्हारी क्या हो? और दरवाजा बंद हो गए, खिड़कियां बंद हो ते किसी ने जो आना की करना, उन्हें की करना है? दरवाजा नॉक करना है, खड़काना है। उन्हें पूछना जरूर भैन ने या भाई ने कौन भी, वो दसे कि मेरा रिश्ता नाता है जब मैं फलां, फिर दरवाजा खुले जाता। उन्हें शागिर्द कमरे च बैठे हुए ने, यरूशलेम चान के बैठ गए ने, बड़े खौफ के अंदर ने गल्लां करन ने कि यीशु मसीह सानू फलाने दिन इत्थे मिलिया है, इत्थे मच्छियां फड़न ने उत्थे मिलिया है यीशु सी। लेकिन समझ नहीं आई कि हुण वो यीशु हुण यकीन करिए या की करिए। लेकिन याद रखो कि खुदा के कलाम च इत्थे लिखा है कि यीशु मसीह खुद अंदर आ गया, दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद ने, अंदर कौन आ सकता है? बदन आ सकता है? खुदा दा रूह आ सकता है। हालेलुया। खुदा रूह सी, खुदा की सी रूह, खुदा दा रूह अंदर आया जो ते रूह की बन गया कामिल इंसान। रूह की बन गया कि यीशु मसीह बन के आज जमीन पे कामिल इंसान की बन गया, कामिल इंसान बन गया। ते जिन्हों अंदर कामिल इंसान बन गया ते शागिर्द परेशान ने। शागिर्द की ने उन्हें क्या लग रहा कि पीछे फिर कोई चढ़ा है, भूत आ गया जो। दरवाजा बंद हो गए ते बंदा अंदर आ जाए तो परेशान होएगा कि नहीं? शख्स होएगी, जिन्हों पहचान होएगी वो परेशानी होएगा। लेकिन ये परेशान ने आगे यीशु मसीह उन्होंने कह रहे तुम्हारी सलामती हो, मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खा कर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। क्या करते हैं? किसी रूह को देखते हैं। और उसने उनसे कहा
तुम क्यों घबराते हो? किने क्या है? किन्ना कह रहा है? शागिर्दां दी। याद रखो कि गल जी शागिर्दां दी आ रही है, टॉपिक शागिर्दां दा आ रहा है, किसी पास्टर दा नहीं, किसी बिशप दा नहीं, अजे कोई कागज ना नहीं, अजे नाम कितना दर्ज हो रहा है? 11 शागिर्द, 11 शागिर्द, 11 शागिर्द। इस वास्ते घबराओ ना। और किस वास्ते तुम्हारे दिल में क्या पैदा हुए हैं? शक। तुम्हारे वास्ते किस वास्ते तुम्हारे दिल में क्या हो गए हैं? शक पैदा होते हैं। आगे यीशु मसीह की क्या दिखाया? उथे यरूशलेम के कमरे च बैठा है, कहना मेरे हाथ, ये भी लिखा है, देखा जी जरा कलाम च कि यीशु मसीह ने क्या? मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं। मेरे हाथ, सब बोले मेरे पीछे, मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं। मैं ही हूं का लफ्ज जिहड़ा है कोई दूसरा शख्स कह नहीं सकता। मैं तो लफ्ज सिर्फ मेरा खुदा पेश कर सकता है। हालेलुया। वो कहता देखो कि मैं बेशक पहले कामिल इंसान सा, और मैं कामिल खुदा भी बन गया है। त्या हत्था पर देखो सेख ने, ये नहीं कि मैं हो रहा, मैं वो ही जिहड़ा ताड़ी खातर सलीब ते चढ़िया। ताड़ी खातर किथे चढ़िया? सलीब ते। मेरे निशान देखो, पैरों के निशान देखो, पसली दिखाई ते कल दिखाई ते फिर उन्होंने की होया? थोड़ा थोड़ा यकीन होया। थोड़ा थोड़ा की होया? यकीन होया जी। मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसे मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। जब मारे खुशी के उनको यकीन न आया और तजब करते थे, तो उसने उनसे कहा क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? यीशु मसीह जी तो मांगता है, की मांगता सी उन्होंने बोलो? मच्छी खाता सी। यीशु मसीह की खाता सी? मच्छी। आगे के लिए उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया। उसने लेकर उनके रूबरू खाया। उनके रूबरू खाया। ये तो मतलब नहीं कि सिर्फ कितला देता है बस ठीक चला गायब हो गया। देखा कि यीशु मसीह ने खादा है, मतलब कामिल इंसान से जो वो दुनिया की खुराक भी खाने से। हालेलुया जी। फिर उसने उनसे कहा कि ये बातें, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुम्हें उस वक्त कही थी जब तुम्हारे साथ था। जब तुम्हारे साथ था। जरूर है कि जितनी बातें मूसा के तौरात और नबियों के सहीफों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। क्या हो? पैदाइश लेके मलाकी तक यीशु मसीह ने अपनी प्रोग्राम ने आन दी भी ते मत्ती पैदाइश का होना ते जिंदा होना, मर जाना, ये सारा प्रोग्राम यीशु मसीह का अपना है। हालेलुया। ये किसी इंसान के अच्छे नहीं था। कोई इंसान एडी बड़ी कुर्बानी दे नहीं सकता। तो यीशु मसीह ने क्या कि मेरी बाबत लिखियां पूरी हो। फिर उसने उनका ज़हन खोला। फिर उसने उनका इनका मतलब के कलाम दस दिया कि शागिर्दां ने ज़हन यीशु मसीह की सी कि ज़हन खोल दिंदा सी कि खुदा बड़ी दावत है कि ज़हन बंद कर दिंदे होंगे लागदे दे है नहीं पता नहीं लगदा। शक जे इनका मतलब कि वो शक अज भी खात्मा के अंदर पाया गया। वो किदत सारी अज भी चलन दी कि कलाम नू असी छुपाया होया है, सच्चाइयां नू छुपाया होया है ते सिर्फ शक की बुनियाद ते असी काम करन दे। ते जेडे शक इत्थे करदे ने, याद रखो कि जदों यीशु मसीह दे कोल जाणगे, यीशु कहेगा मेरी तुहाडे नाल कोई वाकफियत उन्होंने पहचाने ही कोई नहीं, क्योंकि पहचानने वास्ते पहले मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करने की है जरूरत है, स्टडी करने की जरूरत है। तो जिन्हें चीज स्टडी नहीं करते उन्हें च सानू किसी भी गल का मतलब का कोई पता नहीं लग सकता। इस लिखा है कि यीशु मसीह ने उनके ज़हन खोले ताकि किताब मुकद्दस को, बोलो भी, किताब मुकद्दस को समझे। इसका मतलब कि खुदा के कलाम को समझना जरूरी है। खुदा यीशु मसीह को पहचानना कोई सौखा नहीं है।
ग्रंथियों के खत में लिखा है कि शैतान नूरानी चेहरा लैके इंसान को आ जाता है तो इंसान कहता कि हुण मैं तां रात यीशु मसीह मिल गया। वो चिट्टे लिबास च होंदा, उस तरह रंग होंदा, उस तरह रूप होंदा है, लेकिन वो जो जानता है तो कईयां दे ज़हन बंद कर दिंदा है, तो कईयां दा ज़हन फड़ लैंदा है, कईयां दे बदन भारे कर दिंदा है, जिन्हों को तजर्बा उन्हें जंग कर लैंदा है। हालेलुया। ते जिंदा तजर्बा को नहीं वो भैन पाई हुई कहते यीशु मसीह रात में मैंने मिलिया है, ते कहता देग बन दे यीशु दे नाम की बन दे देग बन दे ते सवेरे अपने प्यो दी कब्र ते चला जा। बपतिस्मा सी होर दा होर दित्ती जाने आ ते शिफा भी कहने आ। भैन जी दसो किने शिफा तां दित्ती, भाई जी तुहानू शिफा किने दित्ती? वो बेचारा डरदे ही कहना भी यीशु ने दित्ती, क्योंकि उहदे बगैर कोई शिफा मेरी। हुण दूजी गल किवें दसी होवे तैनूं पता होवे ना, प्रॉपर दसी होवे। इस वास्ते कलाम मुकद्दस लिखा है कि यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में ऐ हुण मनादी खुदा दसने कि किहदे नाम दी करनी है। सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के क्या हो? कौन गवाह ने? शागिर्द। ऐसे पादरी गवाह बड़े फिर यही बड़े बड़े गवाह हैं जी, टेंशन न लो, अगर कोई ख्याल नहीं है। आई यीशु मसीह दे बड़े सच्चे शागिर्दां किया, बड़े सच्चे शागिर्दां कि वे इकट्ठे चलने से। लेकिन याद रखो कि खुदा के कलाम के मुताबिक चलो ताकि खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें। इतने मनादी का हुक्म यीशु मसीह हुण देन दिया, कहता तुम इन बातों के क्या होंगे? गवाह। एक एक गल वंड करके दसिए कि गवाह कौन है? शागिर्द। कौन है? शागिर्द। इस वास्ते कलाम मुकद्दस लिखा है और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ करने के नीचे मेरी बाबत और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, मैं फिर मैं आगे पढ़ो। बाप ने वादा किया, मैं उसको क्या करूंगा? इसका मतलब कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा और बाप और मैं क्या हूं? एक हूं। तो फिर कहते मैं उसको तुम पर क्या करूंगा? नाज़िल करूंगा। लेकिन जब तक आदमी बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इसी शहर में ठहरे रहो। माल की किताब पढ़ो जरा। ये थे उन्होंने यीशु मसीह ने क्या मनादी करने के दिन आए उनके गुनाहों की माफी के नाम की और मनादी यीशु मसीह नाम की करनी। हालेलुया। इतने ज़हन खोलने ने यीशु मसीह ने दसिया है कि जिन्हें कल कुव्वत लिबास ना मिल जाए उन्हें मनादी नहीं करनी जी। माल 2 बाप की सहमति है। पहली बार तो पढ़नी पहले माल 2 बाप की पहली है जी। भाई शफाकत पढ़े। जब ईदे पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। वो सब एक जगह क्या थे? जमा थे जी। कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्होंने आग के शोला की सी फटी हुई जवानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूह कुदस से भर गए। वो सब रूह कुदस से सब रूह कुदस से। यीशु मसीह ने क्या कि जिन्हें तेरे कुव्वत लिबास ना मिल जाए उन्हें मनादी ना करना। सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। हालेलुया। याद रखो कि इतने की मिल गया शागिर्दां नूं रूह कुदस। पीछे रूह कुदस नहीं मिलिया, इतने की मिल गया रूह कुदस जो यीशु मसीह ने आख्या सी कि तुहाडे कोल इख्तियार होएगा और इख्तियार तो बगैर तुसी ना मनादी नूं समझ सकदे हो ना नाम नूं समझ सकदे हो। हालेलुया। ते जेड़े शख्स आज भी
सच्चाई को बयान करते हैं उन्होंने लोग नहीं समझते ते जेड़े इधर तो नीति रखते हैं गल्लां बातां करदे ये बड़ा अच्छा कलाम सुना सकता है। इस वास्ते याद रखो कि बपतिस्मे दा टॉपिक है, इन्ना लंबा टॉपिक है जे मैंने शॉर्ट सुनाया है इस टाइमिंग की वजह से, लेकिन घंटा सवा घंटा लगेगा। 37 आयत पढ़ेंगे। माल 2 बाब की 37 है। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस से अनपढ़ कलाम सुनाते हैं और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ऐ भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की किया कैसी यीशु मसीह ने उनके गुनाहों की क्या होगी? माफी। क्या होगी? अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुदस के नाम में लो जी। यीशु मसीह के नाम कितने नाम बपतिस्मा देता है? लो जी, नाम का नाम मिल गया। नाम का कि नाम केड़ा है? सारे बोलो नाम केड़ा है? यीशु मसीह। जे शिफा उहदे नाम दिया, लंगड़े उहदे नाम चलदे ने, मोटे उहदे नाम जिंदा होंदे ने ते बपतिस्मा भी यीशु मसीह दे नाम है। हालेलुया। दूसरा बपतिस्मा नहीं ना इत्थे उन्हें देता है कि मैं तुम्हें खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देता हूँ, बल्कि उन्होंने कहा कि यीशु मसीह के नाम दा सी बपतिस्मा देने आ। जो कुछ यीशु मसीह ने सानू आख्या है असी वो करांगे, क्योंकि असी गवाह बनना है। कल असी भी जन्नत च जाना है, सोने की सड़कों में रहना है, तो यीशु मसीह के नाम रहना है। तो असी गलत तारीफ नहीं दे सकते। असी इनू मुकम्मल तौर जो यीशु ने सानू प्रैक्टिकल दसिया है असी वो तारीफ देना चाहते हैं। हालेलुया। ते जेड़े नक्शे कदम दे चलदे सी वो यीशु मसीह नू पहचानदे सी, यीशु मसीह नू पहचानदे सी। इस वास्ते कि अज लोग यीशु मसीह नू नहीं पहचानदे। जिन्हां बपतिस्मा ने अज लिया रखो वो यीशु मसीह नू नहीं पहचान सके। उन्होंने स्टैंप किन्ने दी लग गई? उस पुलिस दी लग गई उन्होंने उत्ते कि उन्होंने रोक दे अज नहीं लांगे, कल लांगे, परसों लांगे। लेकिन याद रखो कि पुलिस को मौका ना दियो, क्योंकि लिखा कि तुम खुदा के ताबे हो जाओ तो पुलिस का मुकाबला करोगे तो पुलिस तुमसे भाग जाएगा। तो आगे की लिखा है यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लोगे तो रूह कुदस तुम नाम में पाओगे, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावन हमारा खुदा अपने पास से बुलाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि ताड़े ने वादा नहीं बल्कि ताड़ी आने वाली नस्लों ने वादा है कि जो कुछ मैं तुहानू कहते हुई वो भी करन ते फिर ताड़े नक्शे कदम देने, जे नहीं करते ते फिर वो समझो अपने आप को चौधरी बनाई फिरदे ने। कहंदे नहीं यीशु दे शागिर्दां भी बड़े आ, कलाम शागिर्दां दा सुणाउंदे ने ते बड़े आप बने फिरदे ने। ते जेड़ा इत्थे बड़ा बनया फिरदा है ते खुदा दी बादशाही की बन जाएगा? छोटा बन जाएगा। इत्थे ही छोटे बनांगे ते खुदा दी बादशाही की हो जाएगी? छोटे बनने की कोशिश करिए, बड़े बनने की कोशिश ना करिए। यीशु की कर लेने मैं जो उधर वापस माना मेरे तो आ रहा तो हम किसी के घर नहीं लभा, वो उत्थे सड़क ते चंगा गिनण दिया नाले जा रहा है तो मैं वेख लिया। फिर मैं कहो हो ये तो पेड़ की खिदमत करने वाले लोग ने, सिर्फ चंगा गिराया बक्से च पाया चल गई।